असम के साथ सीमा विवाद कई राज्यों के साथ है। मेघालय का भी असम के साथ सीमा विवाद है। इसी विवाद को सुलझाने के लिए मेघालय सरकार द्वारा गठित 3 क्षेत्रीय समितियों ने अपने निष्कर्षों पर एक प्रस्तुति दी। उल्लेखनीय है कि सरकार ने पश्चिमी खासी हिल्स जिले, री भोई जिले और जनितिया समितियों का गठन किया था। मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने कहा कि बैठक मूल रूप से असम और मेघालय के बीच सीमा क्षेत्रों पर मतभेदों के सौहार्दपूर्ण समाधान खोजने की पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए आयोजित की गई थी। मुख्यमंत्री ने कहा, एक बार जब हम अपना होमवर्क कर लेते हैं तो हम क्षेत्रीय समितियों के साथ 2 से 3 और बैठकें करेंगे। संगमा के अनुसार इन क्षेत्रीय समितियों की अपनी बैठकें भी होंगी और एक बार सत्र समाप्त होने के बाद वे संयुक्त बैठकें और क्षेत्रीय समितियों द्वारा किए जा रहे संयुक्त दौरे हो सकते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि विवरण में जाने पर उन क्षेत्रों में बड़ी संख्या में कोई विवाद नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा, इसलिए हमें उम्मीद है कि इन गांवों में से 20 से 30% जहां हमने देखा है विवाद में है, हम पाएंगे कि वास्तव में उनमें कोई विवाद नहीं है। उनमें एक वे कोई had a meeting with the different regional committees that we had formed to take discussions further on the border dispute that is there, and this is the first meeting after these committees were formed. So the deputy commissioners were asked to give a presentation on their findings and more micro details about the different villages, the different current status of different aspects that are there in those villages. So each of the committees where the member secretaries are the deputy commissioners, which is Ribhoy and West Khasi Hills and Jenti Hills, specifically as of now East Jenti Hills. So the reports were given, the chairmen of those committees were also present, and we got to see and get much more details on this. More exercise needs to be done because there are many more other factors. So basically today was really just a meeting to take forward the entire process of finding an amicable solution to the border differences that are there in between Assam and Meghalaya. And once we have done our homework, we will be having most probably another 2 to 3 sittings with these regional committees, and these regional committees will of course have their own sittings also. And once I think after this session is over, then there may be joint meetings and joint visits being done by those regional committees. So as I said, today was a very long meeting, but it was the crux of the meeting was basically to see the first report that was prepared by the regional committees. मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार राज्य के गांवों को पर्यटन आधारित गतिविधियों के लिए खोलने के लिए मजबूर नहीं करेगी। चाहे स्कूल हो या पर्यटन, स्थानीय प्राधिकरण के पास ये तय करने की शक्ति होगी कि उन्हें क्या करना है। संगमा ने मीडिया कर्मियों से कहा, उन्होंने कहा कि जो गांव अब पर्यटकों का स्वागत करने के इच्छुक नहीं है, वे बाद में अपनी पर्यटन संबंधी गतिविधियों को फिर से शुरू कर सकते हैं। इससे पहले हेमा सोहरा के सीएम के दरबार ने पूर्वी खासी हिल्स जिला प्रशासन से पर्यटकों के प्रवेश को सीमित करने का आग्रह किया था। यह आशंकित था कि सोहरा में पर्यटकों का भारी प्रवाह वहां कोविड वायरस फैला सकता है। राज्य ने पर्यटकों के लिए अपने दरवाजे फिर से खोल दिए और सितंबर से पर्यटन आधारित गतिविधियों को फिर से शुरू करने की अनुमति दी। Government should set up some entry point and all to limit the entry of tourists because they fear of more COVID cases. What is the government taking kind of measures? So we've been very clear with everybody, whether it's tourism or with schools, that the local authorities will have a lot of power to decide what they want to do. So if a particular village in Sora area or in Jenti Hills or Ribhoy
do not desire that tourists should come in, then they can close their tourism sector. There is no problem in that. Similarly, schools also, if they feel that they don't want to open up, nobody is going to force them. What we are trying to do right now is we're trying to open up in a phase-wise manner and give the flexibility to people who would like to, open up, and at the same time allow people who are not very comfortable with things opening up. We're allowing the flexibility for them not to. So if people from Sora or whichever area, I won't take names, since you mentioned it, I'm just mentioning it, but whichever area it may be, it will entirely depend on them. And if the local area people are not comfortable, then they may close the sector for the time being and see and wait when situation improves or when they feel comfortable about it. मेघालय सरकार ने असम सरकार से मेघालय के पशु व्यापारियों को परेशान नहीं करने के लिए कहा है जब वे पड़ोसी राज्य के माध्यम से मवेशियों को ले जाते हैं। कोनराड के संगमा सरकार ने असम मवेशी संरक्षण अधिनियम 2021 की धारा 7 पर चिंता व्यक्त की, जो पशु व्यापारियों के लिए असम के माध्यम से मवेशियों का परिवहन करते समय एक ट्रांजिट पास ले जाना अनिवार्य बनाता है। पशुपालन और पशु चिकित्सा विभाग के प्रधान सचिव GHP राजू ने मीडिया कर्मियों को बताया कि असम अधिनियम के अनुसार मेघालय सरकार द्वारा ट्रांजिट पास जारी किए जाने हैं। केंद्र सरकार के निर्देश निर्दिष्ट करते हैं कि राज्य से एक स्थानीय प्राधिकरण जहां मवेशियों को रखा जा रहा है, खरीदा है, यह प्रमाणित करना होगा कि मवेशी यात्रा करने के लिए उपयुक्त है, स्वस्थ है और टीका लगाया गया है। Two issues. One is the transit pass for any vehicle carrying cattle through Assam. That is Section 7 mandates that we will permit your trucks to transport cattle provided there is a transit pass issued by the competent authority in Meghalaya. Because they say that the cattle are brought into the Meghalaya by legitimate traders to prevent smuggling, basically. Those who are basically to prevent smuggling. So they claim that is basically their contention is that to prevent the smuggling of the cattle. So any cattle, the carrier, the vehicle passing through Assam, that has to have a valid pass. As of now, there are two passes which are mandated by the government of India. One says that suppose you are bringing cattle from Bihar. So the Bihar local authority, animal husbandry authority, have to certify that cattle is fit to travel, healthy, is not having any disease, and it is vaccinated. That's the government of India regulation. The Bihar authority has to give that certificate. Plus, if your truck is used for transportation of that one, so as a carrier, you are providing the carrier, right? So you have to satisfy that yes, these cattle are vaccinated, these cattle are fit to travel. So there are two certificates are mandated by Government of India. Now, whether the Assam Government Act, this act, taken these two, the directions of the Government of India into account or not, we have not shown. But Section 7 as of now insists for a transit pass to be issued by the Animal Husbandry Department of Meghalaya. This is the landlocked country. We have landlocked state. So the Animal Husbandry Department now studying the act. We have studied the act and we are coming up with one solution whether to write to the Assam government that Section 7 is versus the Government of India instructions. That's number one issue. Number two is if it is required, we are coming with a notification authorizing our own local traders. Why should our local traders to be put to inconvenience? They already lost. There are many families, hundreds of people, they employed their own. असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने शुक्रवार को राज्य परिवहन विभाग को सड़क सुरक्षा उपायों के उल्लंघनकर्ताओं के लिए कड़े दंड प्रावधानों के साथ एक नया कानून प्रस्तावित करने का निर्देश दिया। उन्होंने सड़क को कम करने के लिए विभाग को पुलिस और स्वास्थ्य विभागों के साथ समन्वय में काम करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। दुर्घटना से संबंधित मृत्यु परिवहन विभाग के कामकाज की समीक्षा करते हुए असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने जिला परिवहन अधिकारियों DTO के साथ बैठक के दौरान सड़क सुरक्षा प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन और राजस्व संग्रह की स्थिति पर अपडेट लिया। उन्होंने जिला परिवहन अधिकारियों DTO
को उपायों का आकलन करने और आवश्यक हस्तक्षेप करने के लिए हर 3 महीने में पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करने का निर्देश दिया। हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम NHIDCL ने नागालैंड के फेक जिले के अंतर्गत अखेगवो से आकाश ब्रिज जेसौमी तक NH 202 पर 2 लेन के निर्माण के लिए आगे की सभी गतिविधियों को वापस ले लिया है। इसने आगे कहा कि स्थानीय आबादी ने अनुचित मुआवजा पाने के एकमात्र इरादे से प्रस्तावित ROW पर बड़ी संख्या में संरचनाएं बनाई हैं। नागालैंड के मुख्य सचिव को लिखे एक पत्र में NHIDCL के प्रबंध निदेशक ने कहा कि उन्होंने हाल की संरचनाओं के बारे में उल्लेख करते हुए एक ड्रोन फिल्म तैयार की है, जो संगठित तरीके से सामने आया। पत्र में आगे कहा गया है कि इस ड्रोन फिल्म को मुआवजा प्राप्त करने के एकमात्र उद्देश्य से संसाधित किया जाएगा। प्रबंध निदेशक MD ने यह भी जानना चाहा कि जिला प्रशासन ने क्या किया है या इन अवैध अतिक्रमणों को रोकने के लिए उनके द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया PGCIL ने मेघालय में पहले इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन पर काम शुरू कर दिया है। कंपनी ने शनिवार को कहा कि उसने शिलांग के लपालांग में स्थित कार्यालय परिसर में शुक्रवार को अपने पहले इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन EVCS का शिलान्यास किया। कंपनी ने कहा कि इस EVCS का विकास फेम योजना के चरण 2 के तहत किया जा रहा है। इस योजना के तहत पावर ग्रिड शिलांग में 11 EVCS का विकास करेगी। कई इनमें 5 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन होंगे, जबकि 5 की स्थापना सरकारी प्रतिष्ठानों में की जाएगी। बयान में कहा गया है कि इन 11 स्थानों में से 4 के लिए सहमति ज्ञापन MOU हो चुका है। रेल से यात्रा करने वालों के लिए बड़ी खबर है। अब आपको ट्रेन की टिकट बुक करते समय कुछ खास कोड का ध्यान रखना होगा, वरना आपको दिक्कत हो सकती है। इंडियन रेलवे ने सीटों की बुकिंग कोड और कोच कोड में बड़ा बदलाव किया है। दरअसल रेलवे ने की ट्रेनों में नए तरह के कोच की शुरुआत की है। इस कोड के जरिए अब पैसेंजर्स टिकटों की बुकिंग करते समय अपनी पसंदीदा सीट चुनते सकते हैं। आइए जानते हैं विस्तार से। टिकट बुक करते समय इस कोड का रखें ध्यान। गौरतलब है कि रेलवे कई एक्स्ट्रा कोच की शुरुआत करने वाला है। इसमें ऐसी 3 टियर की इकोनॉमी क्लास भी शामिल है। आपको बता दें कि इस तरह के कोच में एक T3 बर्थ होंगे। अभी तक इकोनॉमी क्लास के थर्ड AC कोच में सीट बुकिंग के लिए किराया नहीं तय किया गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी वाहन के हॉर्न की आवाज को और अधिक सुखद बनाने के लिए नए नियमों पर काम कर रहे हैं। गडकरी ने कहा कि मंत्रालय नए नियमों पर काम कर रहा है और वाहन निर्माताओं को सही प्रकार के हॉर्न का उपयोग करने के लिए निर्देशित किया जा सकता है, जिसमें भारतीय संगीत वाद्य यंत्रों की आवाज शामिल हो सकती है। मैं नागपुर में 11वीं मंजिल पर रहता हूँ। मैं रोज सुबह 1 घंटा प्राणायाम करता हूँ, लेकिन हॉर्न सुबह के सन्नाटे में खलल डालता है। इस परेशानी के बाद मेरे दिमाग में यह ख्याल आया कि वाहनों के हॉर्न सही तरीके से होने चाहिए। हमने सोचना शुरू कर दिया है कि कार के हॉर्न की आवाज भारतीय वाद्य यंत्र होनी चाहिए और हम इस पर काम कर रहे हैं। तबला, ताल, वायलिन, बिगुल, बांसुरी जैसे वाद्य यंत्रों की आवाज हॉर्न से सुनाई देनी चाहिए कर दिया है। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने शनिवार को ये जानकारी दी। तालिबान एक ऐसी सरकार बनाने के लिए संघर्ष कर रहा है जो समावेशी और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को स्वीकार्य हो। उम्मीद की जा रही थी कि तालिबान शनिवार को काबुल में नई सरकार के गठन की घोषणा करेगा, जिसका नेतृत्व संगठन के सह संस्थापक मुल्ला अब्दुल गनी बरादर कर सकते हैं। तालिबान ने 15 अगस्त को काबुल पर काबिज होने के बाद दूसरी बार काबुल में नई सरकार के गठन की घोषणा स्थगित की है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुकुल संगमा ने कहा कि कांग्रेस विधायक दल CLP द्वारा विधानसभा अध्यक्ष मेत्ता लिंगदो को उनके पद से हटाने का प्रस्ताव एक सोच समझकर लिया गया फैसला था। विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ प्रस्ताव के विवरण पर आगामी शरद सत्र के दौरान सदन के पटल पर चर्चा की जाएगी। संगमा ने शुक्रवार को CLP की बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा, हम अध्यक्ष को अपना पद खाली करने के लिए कहने वाले प्रस्ताव को पेश करने के अपने फैसले को सही ठहराने के लिए अपना पक्ष रखेंगे।
decision taken by the CLP to move a resolution for the removal of the Honorable Speaker from the office of the Speaker. And this having been shared before you, since this has already been submitted before the Assembly as per the rules of procedure and conduct of business and inconsistent with the relevant provision of the Constitution of India, that is Article 179 of Constitution of India. The details we will be obviously discussing in the August House as we submit our stand as to why we justify our call for adopting a resolution for asking the Speaker to vacate the office of the Speaker. You all know there's a whole dynamics of politics, and since this conscious decision of the CLP to move this resolution under the provision of the relevant provision of the Constitution of India and the relevant rules of procedure and conduct of business in the Legislative Assembly, we will be looking at issues which will draw the attention of every member of the August House vis-a-vis our responsibility towards the people and towards the state. Based on that, how they respond to their respective call of duties. That is how we look at it. Because when issues are discussed and issues which revolves around the interests of the people, and we make a clarion call to look at how whoever feels that whatever we are saying is required to be responded to, and they find it somehow justifiable to articulate their concern and demonstrate their concern before the people of the state. We will look at how, as the discussion unfolds in the House, how they respond.